Assalamu alaikum listeners, viewers. उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to Silly Point by Zalmi TV, hosted by the Gully Cricket Show. मैं हूं शायान और मेरे साथ हैं शरियार. And today we will be discussing Pakistan's first match against the US in Dallas. Pakistan will be kicking off their World Cup journey. Walking into this game, you would consider Pakistan as favorites, but US is coming off of solid performances against Bangladesh. Very amazing performance against Canada, chasing down 194 against Canada in Dallas. It was no joke. Aaron Jones stepped in the last game. He smacked around 10 sixes. और Dallas का जो ground है वो काफी fast outfield है. It looked like a batting paradise against the spinners. Looking at how this game is poised, I would believe this will be a high scoring game. Amazing opportunity for Pakistan batters Saim Ayub, Babar Azam, Mohammad Rizwan to really get in and get in their batting momentum in for this World Cup. तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स, यूएस की स्ट्रेंथ्स, what can we expect from both these teams. Before we get into that, please go ahead and like and subscribe to the Zulmi TV channel. Please also go ahead and check out the Gully Cricket Show YouTube page. The link of that will be in the bio. Shariara bataएं. We started with the first game, US versus Canada. काफी hype थी, काफी crowd आया था. हर कोई नारे लगा रहा था USA. So it was nice to see. But Aaron Jones की क्या ही मतलब आई बैटिंग. Assalamu alaikum listeners and viewers. नहीं, I mean उसने बहुत ही एक जो एक मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कमिंग एट नंबर 4 और जिस तरह से उसने मैच को लेके चला है एंड देन ही मेड श्योर के ही गेट्स द जॉब डन. तो वो ही डिड दैट. उसने जिस तरह से स्पिनर्स को टारगेट किया है, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको बॉलिंग भी बहुत ही सबपार मिली. They were bowling into his zone. He was primarily targeting on the leg side और उसको सारा जो फीड किया गया है वो लेग साइड पे ही. आई मीन kudos to him कि उसने उनको अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया एंड he made Canada pay for it. So a very nice innings, and I think it will be a good morale and confidence booster for him and for the team USA before they will face off against bigger teams like Pakistan and India. So it will be very interesting to see how these teams will step up against bigger teams. ऐसे जिस तरह ये ग्रुप सेटअप हुआ है, इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएस, कनाडा एंड आयरलैंड, is it fair for usually I mean ideally you would like to group up teams with even amount of competency, बट ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत ही मतलब स्टैंड आउट करता है फॉर वेरियस रीजन. वन ऑफ देम इज कि ऑन पेपर दो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं और ऑन पेपर 3 बहुत वीक टीम्स हैं एंड टॉप 2 इज गोइंग टू क्वालिफाई. तो आपको लगता है कि ये does that put extra pressure on the weaker teams or on the stronger teams? I don't think so, क्योंकि I mean आप बाकी ग्रुप्स में भी देखें तो you will get 2 bigger teams basically in all the groups. तो पाकिस्तान इंडिया का एक ही ग्रुप में होना, and then I mean I would not really consider Ireland a weaker team. They are right up there. ठीक है कि उनको ज़्यादा opportunities मिलती नहीं है, but we have seen them in the previous World Cups. उन्होंने upsets किए हैं. तो ऐसा नहीं है कि they are some associate teams anymore. तो हाँ, I mean US Canada के लिहाज से आप कह सकते हैं कि it will be a too big of a challenge for them to compete. But I think ये जो ग्रुप है particularly क्योंकि इसके अंदर सब कॉन्टिनेंट एलिमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है. USA में भी सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स हैं, कनाडा में भी हैं, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान जो है ही सब कॉन्टिनेंट. तो व्यूअरशिप के लिहाज से और जैसे हमने पहले मैच में भी देखा कि स्टेडियम में लोग आए थे मैच देखने के लिए, उस तरह का हमने क्राउड अभी तक दूसरे मैचेस में नहीं देखा. इवन जो वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ है उसमें भी इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग टू सी के उनके लोकल क्राउड उस तरह से. आई मीन एंड आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि दे वर नॉट प्लेइंग सम बिगर टीम
एसोसिएट नेशन को खेल रहे थे, तो वन वुड अंडरस्टैंड के क्राउड इस तरह से टर्न अप नहीं किया, बट बीइंग अ होस्ट नेशन वन वुड एक्सपेक्ट के क्राउड आएगा। तो उस लिहाज से आई थिंक ये वाला ग्रुप जो है, इट इज़ मोर अबाउट गेटिंग द व्यूअरशिप, गेटिंग द द एक्सपोजर, और द आपको पैक स्टेडियम्स मिलेंगे, थोड़ा ड्रामा मिलेगा, यूएस कनाडा राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, तो वो इस इट इट मेक्स अ टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग। तो वरना उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी ग्रुप्स में उस तरह से जान नहीं है, एज कम्पेयर टू गेटिंग द हाइप अराउंड फैंस एंड मैचेस की एक प्री हाइप हो, वो उस तरह से आपको मिलेगी नहीं जो इस ग्रुप में मिलेगी। तो आई थिंक I mean, it's evenly, distributed. नहीं, वैसे डैलस का जो स्टेडियम है उस कंपेयर टू द नेसा कार्नी स्टेडियम, अभी आज जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका गेम हुआ था, maybe it was a न्यूट्रल टीम्स इन अ सेंस के न्यूयॉर्क में ज़्यादा देसियों की पॉपुलेशन है, तो सरप्राइजिंगली कि उस वाले स्टेडियम में इतने लोग आए नहीं। बट लुकिंग एट पाकिस्तान, एक्सपेक्टेड ये है कि वही 11 खेलेगी जो इंग्लैंड में खेली है। साइम अयूब पे थोड़ी अगर बात करें तो क्वेश्चन एक वही बनता है कि डू यू स्टिक विद साइम, डू यू गिव हिम अनदर गो, golden opportunity for Sam if he gets the game against the US. नहीं, I mean he definitely should get the game. आपने जब उसको इतना बैक किया है तो there is no point of shutting him out at this stage. Or you're playing against USA, so that it's not really आप कोई एलिमिनेटर टाइप गेम नहीं खेल रहे हैं, इट विल बी अ किक ऑफ फॉर द टूर्नामेंट। तो आपको जिस पे आपने इतना बैंक की है तो स्टिक टू हिम एंड सी हाउ ही डज। अगर आपको लगे कि हमें मैच में पता चल जाएगा, ऑब्वियसली जो अभी तक कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, इट्स इट्स गोना बी अ ट्रिकी विकेट टू बैट ऑन, स्पेशली अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं। तो I mean Dallas की विकेट ऑब्वियसली इट विल बी मच मोर फ्रेंडलियर, जो हमने पहले मैच में देखा है। सेटिंग अ टारगेट इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको अब कनाडा ने 193 किए एंड देन दे लॉस्ट द मैच, तो आपको यू हैव टू सी कि आपका कि कितना स्कोर स्पेशली डेलिस के ग्राउंड में करना है। न्यूयॉर्क के ग्राउंड में ऑब्वियसली हमने देखा कि इट्स नॉट रियली अ बैटिंग विकेट जो अभी तक देखने को मिला है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके बैटर्स तो डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। तो डेलिस की विकेट पे साइम को खिलाना, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, क्योंकि वहाँ पे बैटिंग विकेट है, बाउंस अच्छा है, बाउंड्रीज थोड़ी सी सब कॉन्टिनेंट स्टाइल है, तो ही वंस ही मेरे ख्याल से ही विल बी एबल टू गेट सम रन्स अंडर हिज बेल्ट। तो आपका जो एक सेट कॉम्बिनेशन बना हुआ है जिससे आपने मेजॉरिटी ऑफ द सीरीज खेली हैं, मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स खेले हैं, ट्राई दैट फर्स्ट, एंड अगर वो पे ऑफ नहीं करता तो देन यू कैन ऑलवेज मेक चेंजेस इनटू द लेटर स्टेजेस। डेलिस डेलिस की जो आपने बात की है, मैं वो पिछले वाले गेम में सुन रहा था कि according to the commentators and the experts that are on the ground, they felt like कि जो डेलिस की जो स्टेडियम है, it's more like a subcontinent style स्टेडियम पिच के लिहाज से, और जो नेसा काउंटी जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है, इट्स मोर लाइक इंग्लैंड, थोड़ा बाउंस मिलेगा, थोड़ी बहुत लैटरल मूवमेंट मिलेगी आपको। तो और ये बात थोड़ी सच थी कि आज हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका का जो बॉलर है मार्को यानसन, उसको ठीक ठाक स्विंग मिल रहा था, और लुकिंग एट द डैलस स्टेडियम, वहाँ पे इतना कोई बॉल की मूवमेंट नहीं थी। इनिशियल स्टेजेस में होती है जो नया बॉल का बिहेवियर होता है, बट आफ्टर 3 to 4 ओवर्स वो मूवमेंट ख़त्म हो गई थी, और ना टर्न हो रहा था, ना बॉल वाज प्रीटी मच कमिंग आउट टू द बैट। तो लुकिंग इनटू दिस गेम, डू यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू
I mean, do you think Pakistan have enough data points to treat this as a condition, as a game that you're playing in subcontinent? I mean, Pakistan normally जो है वो डाटा वाटा पे कुछ ज़्यादा इतना रिलाई करती नहीं है. They always go with their gut feeling के हाँ हमें इसको खिलाना है या उसको खिलाना है. जहाँ बात डैलस की है और न्यूयॉर्क की, ऑब्वियसली वेदर चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट है. ड्रायर वेदर है थोड़ा डैलस का. और वहाँ का ग्राउंड, वहाँ का जो प्ले है अभी तक देखने को जो मिला है वो सब कॉन्टिनेंट स्टाइल है, और उसकी वजह वहाँ का वेदर है क्योंकि थोड़ा ड्राई वेदर है. न्यूयॉर्क को ऑब्वियसली हमें पता है कि अभी समर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा एक फॉल से, आई मीन स्प्रिंग से भी बाहर आए हैं, समर में जा रहे हैं. तो और फिर न्यूयॉर्क में ऑब्वियसली हवा का फैक्टर होता है, तो आई मीन ऑब्वियसली वहाँ पे कंडीशंस आपको इंग्लिश कंडीशंस टाइप मिलेंगी, तो वो एक डिफरेंस है. एंड डैलस में आई एम प्रिटी श्योर कि अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो दे विल गो फॉर द चेस, एंड दे विल लाइक टू सी के कितना स्कोर यहाँ पे चेज होगा, या कि क्या दे विल ट्राई टू पुट द अदर टीम इनटू द बैट, और वहाँ से फिर दे विल सी के हम किस तरह से मैनेज करते हैं. क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की तो आई एम प्रीटी श्योर के दे विल फाइंड इट हार्ड, क्योंकि उन्होंने अभी तक आउटडोर कोई प्रैक्टिस की नहीं है इन डैलस ग्राउंड, और आज भी मेरे ख्याल से उनकी जो प्रैक्टिस थी वो इंडोर थी. तो ऑब्वियसली एलियन कंडीशंस हैं. और बट पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह हम लोग खेलते हैं, आई मीन इट डजंट रियली मैटर कि आपको कितनी प्रैक्टिस मिली हुई है, कितना आपको कंडीशंस का और ग्राउंड्स का आइडिया है. वी विल प्ले हाउ वी नॉर्मली प्ले. Do you think not having warm-ups is that going to affect anything? Okay, Pakistan came straight from England and they're going into their first game. पाकिस्तान इंग्लैंड दो वाहिद टीम है जिनको वार्म अप्स नहीं मिले. बहुत और भी टीमों को वार्म अप्स नहीं मिले, दैट वाज ड्यू टू द वेदर, बट पाकिस्तान और इंग्लैंड के तो स्केड्यूल ही नहीं थे. डू यू सी do you foresee issues like that in prep, in team combination? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको गेम टाइम नहीं मिला है. अबरार को गेम टाइम नहीं मिला हुआ है. उस्मान खान का भी एक ही गेम हुआ है. इमाद वसीम ही इज 50-50. तो काफ़ी लोग हैं जिनको गेम टाइम की थोड़ी गेम टाइम के इश्यूज हैं. नहीं है, गेम टाइम उन्हीं को नहीं मिला है जो प्रेफर्ड चॉइस नहीं है. तो जो प्रेफर्ड चॉइस है उनको गेम टाइम मिला हुआ है, एंड दैट मेक्स इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अबरार को अगर गेम टाइम नहीं मिला है तो उसकी वजह यही है कि दे विल स्टिक विद शादाब अनलेस के कोई बहुत ही इंजरी कंसर्न हो या उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाए, तो लेटर स्टेजेस में अबरार कैन कम इन, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग द फर्स्ट फ्यू गेम्स. उस्मान खान का भी ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी है, even though he did well in the last game against England, but I'm pretty sure कि they will go with Saim Ayub again, और उसको दोबारा चांस देंगे. तो जिनको टाइम नहीं मिला है, it is only because के they are not they don't walk into the preferred playing 11. फोर्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली they will come into the team, but जिनको गेम टाइम मिला हुआ भी है उनकी भी कोई परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. हमारी बैटिंग जो है वो इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड बाबर, फ़खर एंड रिजवान. तो इन तीनों ने अगर रन किए तो ही हमारी बैटिंग क्लिक करेगी, अदरवाइज बाकियों का उस तरह से अभी they don't have the performance under their belt right now. Bowling maybe we are relying too much on Haris Rauf and Shaheen to take wickets, because spinners are not we are not very strong in the spin department. और pacers में भी जो हमारे पास pacers हैं, only couple of them are genuine wicket takers. So issues हैं, but let's see how they will turn up and how will they overcome these challenges in the first game. Matchups,
क्या मैचअप्स देख रहे हैं आप? एरन जोन्स वाज अ स्टार परफॉर्मर। आई थिंक कि अगर इमाद खेलते हैं, इमाद वर्सेस एरन जोन्स इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। अगर बॉल स्विंग होता है और एरन जोन्स पावर प्ले में आते हैं, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिनेरियो। बट आई थिंक एरन जोन्स और इमाद वसीम का एक अच्छा मैचअप होगा। नहीं, आई थिंक एरन जोन्स का मैचअप हारिस से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर देखें तो एरन जोन्स को बहुत ज़्यादा कोई हार्ड लेंथ पे टेस्ट नहीं किया किसी बॉलर ने। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनाडा की बॉलिंग बहुत कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लगी नहीं। दे हैव अ वेरी वीकर बॉलिंग अटैक। तो ऑब्वियसली हार्ड लेंथ पे शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल जो होती है, उस पे मेरे ख्याल से टेस्ट करना और वो थोड़ा सा एक देखना होगा कि उस तरह की बॉलिंग को वो कैसे खेलता है। ऑब्वियसली ही इज़ वेरी लेग साइड डोमिनेंट, और बट उसके ये है कि ही हैज़ अ फायर पावर। वो मारता है तो सॉलिड मारता है। ऑब्वियसली उसको वो पेस यूटिलाइज ज़रूर करेगा। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। और जहाँ तक बात आपने कहा इमाद का, तो ऑब्वियसली इमाद विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स, क्योंकि अगर आप देखें तो यूएस और कनाडा के गेम में भी जो इस यूएस के जो स्पिनर्स थे उन्होंने बेहतर बॉलिंग कराई एज कम्पेयर टू कनाडा। दे वर मोर लूपी। वो पेस वेरी कर रहे थे अपनी, और उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग कराई है जिससे उनको विकेट मिली है। As unlike Canadian spinners, they were just trying to make sure कि उन पे बहुत ज़्यादा रन्स ना लीक करें, and उसकी वजह से उनको हिट्स बहुत लंबी लंबी लग रही थी। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। मगर उनके स्पिनर्स, इट लुक लाइक पाकिस्तान टीम को थोड़ा सा वो तंग कर सकते हैं, क्योंकि लोकल कंडीशंस में उनको आइडिया है कि कैसे बॉलिंग करानी है इन पिचेस पे। और पाकिस्तान ने क्योंकि इन पिचेस पे अभी तक खेला हुआ नहीं है, तो दे विल फाइंड यू नो ट्रिकी टू प्ले दीज स्पिनर्स। नहीं, अली खान जो है यूएस के जो फास्ट बॉलर हैं, मैंने ये भी देखा था कि ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर्स हैं इस लास्ट गेम में उनको टाइट मार मार पड़ी है। अली खान की 40 रन्स इन 4 overs। कैनेडियन स्टीमर्स गेव अवे ऑलमोस्ट 70 रन्स इन 7 overs। तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान जाता है सीमर्स के साथ, जो जो लास्ट प्लेइंग 11 खेली थी, नसीम शाह, आमिर, हारिस, रोबिन, शाहीन, तो अगर आप ये खिलाते हैं तो इसके आपको यू ओनली हैव शादाब एज योर स्पिनर। बट इमाद अगर आते हैं तो वो नसीम शाह की जगह आते हैं आपके ओपिनियन में, या वो आमिर की जगह आते हैं? क्योंकि आई डोंट थिंक दे विल बी बेंचिंग हारिस रऊफ। Obviously Shaheen is not going to be benched either. I don't think Naseem Shah will play the first few games, क्योंकि आमिर को बिठाना doesn't make any sense। और इन कंडीशंस में आमिर को आप खिलाओगे, क्योंकि ये इन कंडीशंस पे ही कैन बी अ वेरी अटैकिंग ऑप्शन। तो उसके कटर्स, उसकी पेस वेरिएशंस, इट विल कम अप वेरी हैंडी। तो आप इमाद के साथ जाओगे, आप आमिर के साथ जाओगे, आप हारिस रऊफ के साथ जाओगे, आप शादाब के साथ जाओगे, दैट्स योर प्रेफर्ड 11। अनलेस कि कोई और फोर्स चेंज हो तो हो। अदरवाइज आई डोंट सी नसीम शाह प्लेइंग द फर्स्ट फ्यू गेम्स। बिफोर वी रैप इट अप, हम लोग एक प्लेयर के बारे में ज़रूर बात करनी है, वो है आज़म खान। रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी क्रिटिसिज्म उन पे हुआ है। फेयर हो अनफेयर हो, वो तो बात की बात है, बट टूर्नामेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है उसका, और वो ऑलरेडी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में, मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो उस पर खामखा का एक प्रेशर सवार हो गया है। डू यू डू यू डू यू थिंक इट्स सेल्फ इन्फेक्टेड? तो नहीं बोलूँगा, बट there were some statements that he had given, and I think that sort of brought even more spotlight onto him.
डू यू डू यू थिंक कि जो अभी उसका जो सिनेरियो चल रहा है आजम खान का, इज दैट फेयर, या डू यू थिंक यार इसको मतलब लेट हिम प्ले हिज क्रिकेट, गिव हिम टाइम? यार ये जो है ना, आप ही इज नॉट द फर्स्ट गाय हु इज गोइंग थ्रू विद दिस। पहले भी क्रिकेटर्स के साथ इस तरह से हुआ है। हमारे फैंस ऑब्वियसली काफ़ी इमोशनल होते हैं, वो एक हाइप क्रिएट कर देते हैं प्लेयर की आने से पहले। और ऑब्वियसली जब वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाता तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है, और फिर बहुत ही नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो यू नो I won't say I am happy to see him going through with this phase, but it will, if he is able to pull it off, अगर वो इस phase से निकल आता है and he start performing, then it will make him a better cricketer than he is right now. So obviously, international cricket is no joke. Being an international player for a country like Pakistan, it's no piece of cake. तो obviously आपको इस तरह के challenges face करने पड़ेंगे, and he is facing that right now. मेरा बस concern थोड़ा सा ये है कि this is the time he needs most of the backing, not necessarily from the fans, but from people who are around him. So, captain, management, other senior players of the team, they should be making him as comfortable as they can, so that जब आप उसको एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए लेके गए हैं तो उसका मेंटल ही शुड नॉट बी फीलिंग दैट दिस काइंड ऑफ अ मेंटल प्रेशर। और उससे फिर वंस ही इज कंफर्टेबल अराउंड द फोक्स, देन परफॉर्मेंस आएगी, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जब उससे परफॉर्मेंस आएगी तो देन आई मीन ये फैंस, it's not gonna take them too long to turn around and start praising Azam. तो it's just a phase, and I think कि ये बहुत ही एक short lived phase हो उसके लिए, but hopefully if he is putting the hard yards in, अगर वो मेहनत कर रहा है अपने honesty के साथ, वो hard work कर रहा है, तो then there will be a time when when things will start to turn around for him. या तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को ऐसा स्टेटमेंट दें जिनसे उनका यूट्यूब चैनल बंद होने की शर्त लगाएं, तो शायद आजम खान चढ़ जाए। I feel like that's the only way you can stop those criticisms coming in. तो चलें, इसी के साथ हम लोग रैप अप करते हैं, and we hope कि पाकिस्तान का पहला गेम they start off with a win. US is not going to be an easy opponent. They're playing in their home conditions. They know what to expect out of these conditions. Dallas का जो स्टेडियम है वहाँ पे MLC भी हुआ है, तो डैलस का स्टेडियम थोड़ा उस पर काफ़ी क्रिकेट हो चुकी है, enough cricket to understand the dynamics of that ground, and the only team that's familiar with it is US. तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी. If you are new to the channel, please go ahead and subscribe to Salami TV, and please also go and check out the Gully Cricket Show. Link of that will be in the bio. Next time मुलाकात होती है. Allah Hafiz.